Hello, Libra people. Welcome to my reading. It's a reading about your life story. Mind it, not love story. It's a reading about your life story. That means life in general. Okay? Whatever situation you're facing in life, in whatever area, whatever field, whatever domain it might be. So it will all project through this reading. Okay, so I'll be using 4 multiple decks, 2 of tarot decks and 2 of oracle decks. Okay, so in order to enhance your reading and to bring more accuracy to the reading, in-depth reading जिसे कहते हैं, okay, so that you can get the meaning correctly and properly, overall meaning or overall gist of the story. Okay, so it's about your life in general. क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या परेशानी, अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स है आप फेस कर रहे, कुछ अप्स फेजेस है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ डाउन फेजेस है तो उसके लिए गाइडेंस भी है. इट विल बी फॉलोड बाय द गाइडेंस. So let's see, Libra people. Once again, welcome to my reading. Oh, in reverse. Okay. Fine. The Hanged Man in reverse. Interesting. Another tarot deck I'll be using. All the readings will be followed by the guidance. ऐसे तो guidance आपको step by step ही समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा मेरे तरफ से. Through these cards, the messages will come out from the divine universe, and please do pay heed to the messages because it is very very important. आपको guidance मिलेगा तो please pay heed to the guidance. It is very important क्योंकि परेशानी के समय गाइडेंस ही सही दिशा दिखा सकती है आपको, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. और अगर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी गाइडेंस को हमेशा फॉलो कीजिएगा, वो और बेहतरीन बनाएगा आपके जीवन को. Isn't it? Okay. Now oracle deck. Done with the tarot deck. Now oracle deck. Please have patience, Libra people, till I shuffle all my cards. उसके बाद रीडिंग स्टार्ट होगा क्योंकि शफलिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. जो लोग टैरो देखते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट शफलिंग इज़. एंड द लास्ट डेक ऑफ एंजल्स एंड ऑरास, ये आपकी एनर्जी जो है उसके बारे में बताएगी. द करंट एनर्जीज दैट यू आर हैविंग, इफ इट्स ऑल राइट और नॉट, वेदर यू नीड टू चेंज योर वाइब्रेशंस और एनर्जीज और ऑरास, उसके बारे में भी इस कार्ड से पता चल जाएगा. in the form of guidance. Okay. Fine. Starting with your reading, done with the shuffling. Starting with the tarot deck first, tarot card. It has come out the card of Hanged Man. The Hanged Man, but it's in reverse. It's in reverse. The Hanged Man in reverse.
It says delays, resistance, indecision. Delays, resistance, indecision. To further describe it, you are being impulsive and making rash decisions to hide your discontentment. In other words, you may be jumping from one bad situation to the next without considering where this behavior is taking you. Okay, Libra people, this is your reading. Hanged Man ऐसे तो कहता है कि you know you're stagnant in the situation. आप दूसरे नज़रिया से देख रहे, दूसरे पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे माइंड में, दुनिया को दूसरे नज़र से देख रहे, सिचुएशंस को दूसरे नज़र से समझने की कोशिश कर रहे. पर यहाँ पे केस ऐसा नहीं है, यहाँ पे केस उल्टा है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है. ओके, तो रिवर्स में आएगा तो इसका मीनिंग भी बदल जाएगा. तो मीनिंग यही बदला है कि आप डिलेस फेस कर रहे, रेजिस्टेंस फेस कर रहे, कुछ ब्लॉकेजेस फेस कर रहे, इंडिसिसिव हो रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे ठीक से अपने सिचुएशन को लेके लाइफ में. यू आर बीइंग अनएबल टू टेक some important decisions in life. Okay, you're being unable minded, indecisive हो रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, and उसके बावजूद you're being very impulsive, and that's why since you're being impulsive and making rash decisions तो ले रहे लेकिन वो सही नहीं हो रहे. एक से एक सिचुएशन, दूसरे से तीसरे सिचुएशन, तीसरे से चौथे सिचुएशन, ऐसे आप जंप करते जा रहे. यू हैव टू पुट अ ब्रेक इन योर एक्टिविटीज. इस कार्ड का गाइडेंस यही है. यू हैव टू पुट अ ब्रेक विच यू आर नॉट डूइंग, लिब्रा पीपल, एंड दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ डिसीजन इज bringing you discontentment, dissatisfaction. In other words, you may be jumping from one bad situation to the next. Bad situation, mind it. आप डिसीजन नहीं ले रहे, बिना सोच के समझ के, बिना सोचे समझे आप जंप कर रहे एक सिचुएशन से और एक सिचुएशन में. सॉरी, इसीलिए गलत हो रहा है. उसके बावजूद आप डिलेस फेस कर रहे हैं अपने काम में, शायद डिलेस फेस कर रहे इसीलिए आप इम्पल्सिव हो रहे हैं कि नहीं मेरे को वेट नहीं करना, मैं वेट नहीं कर सकती या फिर मैं वेट नहीं कर सकता. इसीलिए आप जंप कर रहे, जंपिंग एटीट्यूड आप में आ रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, और इसलिए हड़बड़ी में गलती होना ऑब्वियस है. हम लोग कुछ हड़बड़ करके करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं. सोच समझ के चलिए. यू आर नॉट कंसिडरिंग. कुछ करने के पहले, कुछ बोलने के पहले आप सोच नहीं रहे, बस फटाफट एक से एक सिचुएशन में ऐसे मूव ऑन करते जा रहे, और सभी बैड हो रहा है नतीजा, क्योंकि आप सोच नहीं रहे, दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे. डिलेज आपको पसंद नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस आपको ब्लॉकेज लग रहा है, आप सहन नहीं पा रहे, आपको लग रहा है मेरे को अभी चाहिए रिजल्ट, अभी इसी वक्त. यू आर बीइंग वेरी इम्पल्सिव, जैसा कहा गया है, यू आर बीइंग वेरी इम्पल्सिव. इसीलिए रैश डिसीजंस ले रहे, रैश एक्टिविटीज़, एक्शंस हो रहे हैं आपके. तो यू हैव टू, इफ़ यू वांट द गुड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, you have to take a pause. Libra people, you have to take a pause. Think before you act. Okay?
थिंक बिफोर यू एक्ट, तब जाके सुधार आएगा। डिलेज है तो वेट कीजिए। हैव पेशेंस, पेशेंस बहुत बड़ी बात है जो इस सिचुएशन में आपको चाहिए। पेशेंस बहुत बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ है इस सिचुएशन में आपके लिए करेंटली। ओके ओके Libra people, so you got a very clear message from this tarot card of the reversed Hangman. Moving on to the next card, it says karma fun, which says have fun without any reason. Have fun without any reason. लेकिन आपका जो ये सिचुएशन लाइफ में अभी चल रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल द लिब्राज, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि कुछ लिब्राज के साथ रेजोनेट हो, कुछ लिब्राज के साथ रेजोनेट ना हो. सो प्लीज़ take it as it resonates with your own life story, Libra people. Okay, hope you got it. हो सकता है ये सिचुएशन, ये जो इम्पल्सिव फेज़ चल रहा है आपके लाइफ में, हो सकता है कुछ लिब्रास के लिए ये लव लाइफ में चल रहा है, कुछ लिब्रास के लिए प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, कुछ लिब्रास के लिए फैमिली लाइफ में चल रहा है, प्रॉपर्टी लेके, पैसा लेके. सो इट कुड बी एनीथिंग. Okay, so just take it as it resonates with your own life story. Okay, this card says karma fun. Have fun without any reason. Fun, obviously हम लोग को खुश रहना चाहिए. We should have fun in your life, in our life. That is necessary or a necessity, I must say. It is a necessity. क्योंकि हर टाइम सीरियस तो इंसान रह नहीं सकता है और रहना भी नहीं चाहिए. सो इट इज़ अ नेसेसिटी फन. लेकिन आपका जो अभी लाइफ सिचुएशन चल रहा है, प्लीज़ ज़रा सोच समझ के पैर रखिए. जो भी कर रहे हैं वो कहीं उल्टा असर न पड़ जाए उसका. हैव फन बट नॉट विदाउट थिंकिंग. रीज़न कुड बी विदाउट एनी रीज़न. छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ लाइए. छोटे छोटे चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए. यही सबसे बड़ी खुशियाँ होती है. बड़े खुश रहने के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं चाहिए. छोटी चीज़ों के लिए भी इंसान खुश रह सकता है. Isn't it? So have fun without any reason, but do use your mind, do use your intellect, do use your wisdom. This is the guidance. Okay? Now the next card says diving. Diving means dig deep into your soul. Get connected to your inner self. Get connected to your inner self, your higher self, जहाँ पे विजडम बसता हो, इंटेलेक्ट बसता हो. क्योंकि आप बिना सोचे समझे जंप कर रहे हैं एक सिचुएशन से और एक सिचुएशन. आपको डिलेस पसंद नहीं आ रहे, आपको रेजिस्टेंस ब्लॉकेज जैसा लग रहा है, आप में वो पेशेंस की क्षमता ही नहीं है. तो फॉर दैट यही गाइडेंस का कार्ड आया है, विच इज़ वेरी मच एप्लीकेबल इन योर केस. डीप डीप, शांत कीजिए अपने मन को. काम योर माइंड. समुंदर में कैसा होता है? डाइविंग का मतलब क्या है? सी, डाइविंग का मतलब क्या है? डाइव मीन्स डिग डीप. डाइव करके नीचे जाइए, समुंदर के नीचे. मेटाफरिकली, सच में मत जाइए. तो माइंड को लेके जाइए. ओके? क्योंकि आप देखेंगे, आप सभी ने देखा है, नोटिस किया है डेफिनेटली, समुंदर के जितने भी वेव्स होते हैं वो समुंदर के ऊपर होते हैं. टर्ब्यूलेंस, टर्मोइल, जो वेव्स होते हैं, उथल पुथल, वो समुंदर के ऊपर होते हैं. वेव्स अंदर नहीं होते हैं. तो आप ऊपरी लेयर में रहेंगे तो आपको ऐसा ही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा.
बहुत उथल पुथल वाला, टर्ब्यूलेंस, टर्मोइल का, लेकिन अगर आप डाइव करके नीचे जाएंगे, डीपर जाएंगे, अपने सोल से कनेक्ट करेंगे, तो समुंदर में अगर डीप जो जाते हैं, डाइवर्स जो होते हैं, या फिर टीवी में भी आप लोग देखते होंगे जो नेचर चैनल्स हैं, समुंदर के अंदर कैसा होता है, इट्स वेरी काम, इट्स वेरी स्टेबल, इट्स वेरी पीसफुल. सो ये सब क्वालिटीज़ आपको यूनिवर्स मैसेज के तौर पे दे रहा है, गाइड कर रहा है. यू हैव टू डीप. आप नीचे जाएं, अपने अंदर से कनेक्ट करें. सोल क्या है? हम लोग का डीपर वर्जन ही तो है ना. इंसान का बॉडी, ह्यूमन फॉर्म एक आउटर फॉर्म है, लेकिन उसके अंदर कौन बसता है? हम लोग का सोल, आवर स्पिरिट, आवर सोल, आवर डिवाइन गाइडेंस. आप सोल से कनेक्ट करेंगे तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिल जाएगा वहीं से, क्योंकि योर सोल इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द डिवाइन. And from there, if you connect to your soul, you will automatically get connected to the divine. हमेशा याद रखिएगा इस बात को. So, आप डीप करेंगे, अपने से कनेक्ट करेंगे, मन को शांत करेंगे, तो आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे. अगर आप कुछ आंसर ढूंढ रहे आपके लाइफ सिचुएशन को लेके, तो सब आंसर्स मिल जाएंगे. नए अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको थॉट्स आएंगे, ख्यालात आएंगे, सिचुएशन पैदा होगा वैसा. सो काम योर सेल्फ. यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट. ये दोनों कार्ड्स में एक ही मैसेज आया है. डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ उथल फुथल चल रहा है. ये आप ही की वजह से चल रहा है, क्योंकि आप ठहर कर नहीं चल पा रहे. यू आर बीइंग वेरी इम्पल्सिव, यू आर बीइंग वेरी इम्पेशेंट, लिब्रा पीपल. सो calm yourself, get connected to your inner self, get connected to your soul, calm your mind, and you will get all the answers. Fresh new opportunities. Stable life, stability, stable situation तभी आपको मिलेगा ज़िंदगी में. ऐसे एक से और एक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे सिचुएशन में जंप करते रहेंगे बिना सोचे समझे, तो सिचुएशन का आउटकम या इफ़ेक्ट बैड ही होगा. नॉट अप टू द मार्क, नॉट अप टू योर सेटिस्फैक्शन. ऐसा नहीं होगा. फिर इट विल बी द result will be certainly not up to your satisfaction. So I hope you got the clear meaning. Moving on to the next card of guidance. Point of view. Gratitude, assistance, guidance, understanding. Can you see the picture? There are two people out here. एक का हालत देखिए, दूसरे का हालत देखिए. आपकी हालत शायद ऐसा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे. करते जा रहे एक सिचुएशन से और एक सिचुएशन जंप करते जा रहे. आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको ऐसा बनना है. ओके लिब्रा पीपल, a very clear guidance from the divine universe. Please pay heed to the guidance. समझिए, तब जाके सुधार आएगा आपकी ज़िंदगी में. ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को. जो हम लोग की लाइफ में कभी ब्लेसिंग्स होता है, कभी लेसन्स होता है. गुड सिचुएशंस जो है वो ब्लेसिंग्स की तरह होता है. बैड सिचुएशंस जो है वो भी एक तरीके का ब्लेसिंग्स ही होता है, क्योंकि उनसे हमको लेसन्स मिलता है, हम लोग कुछ सीखते हैं. तो वो भी ब्लेसिंग के तौर पे ही लीजिएगा और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए. थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को. असिस्टेंस मांगिए यूनिवर्स से, हेल्प मांगिए. आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर गाइडेंस to the universe, and most importantly get connected to your inner self, to your soul. For that
you have to meditate, you have to calm your mind. सब आंसर्स आपको वहाँ से मिलेगा। फिर जो भी आप जानना चाहते हैं खुद से पूछिए। यूनिवर्स इज देयर टू गाइड यू, दैट्स हाउ द डिवाइन विल गाइड यू। समझिए, पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, बिना सोचे समझे आप जो कर रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू को पहले समझिए। पॉइंट ऑफ व्यू समझना, किसी भी सिचुएशन के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं आप उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए उल्टा हैंगमैन का सिचुएशन आया है, कार्ड आया है। तो पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए और डीपर तरीके से समझिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। समझ में उनको ही आता है जो समझना चाहते हैं। जो समझना नहीं चाहते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, तब तो फिर समझने वाली कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है। इच्छा रहनी चाहिए ना, इच्छा होनी चाहिए समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू अंडरस्टैंड सम वंस पॉइंट ऑफ व्यू, टू अंडरस्टैंड सम सिचुएशन डीपली। तो इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी मिलेगी ऐसे। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। Say thanks to the universe, pay gratitude to the universe. Whatever blessings or lessons you have got, pay gratitude to the universe. और जो मैंने कहा through all these cards, उस messages को ध्यान में रखिए and वैसे उस हिसाब से changes लाइए अपने life में, Libra people. Hope you got a very clear message through my reading and hope it helped you and guided you. Stay blessed. And do take care. See you in my next reading. Till then, take care. Bye-bye.